Hello everyone, welcome back to our channel. This is Nidhi and Hi everybody, my name is Mohit. today, after a long time, we are making a video. And finally we got some time and we were like, okay, we were getting a lot of feedback from students who were moving here that why did we stop making, and our videos were really useful for them. So that's why we decided that we will start it again, and hopefully this time will not take this long break. Yeah, hi everybody, welcome to Ken Vlogs again. In today's video, as you have read the title, like I'm gonna show you how you can save your money. If you are new here, whenever you come, whenever you land here, it is obviously advantageous to have a car. And when you have, before you drive, you need to take driving lessons from the designated and registered drivers. We are not registered. We are just telling you out of our experience. So what happens here, whenever you go for driving lesson, they charge you $50, $40 for 1 hour. 40 is not anymore. So I think it's now 40. basically you are paying $50 an hour. Yeah. Our today's video agenda is to save your those $50 At least for one class. At least for one class. So what I'm gonna do here, we are driving from Glace Bay to Sydney, and we have also driven in Montreal, Toronto and Halifax, in the big cities as well. So we are going to share our experience, how you can save your money, and whenever We'll you share a few tips and how few tips, the roads are in Canada, especially in Sydney, Nova Scotia. So yes, so this video will give you an idea how the roads are, how to see the road signals, and what do you need to follow when you are driving a car or a truck or anything. Canada. So what happens here, when you take the driving lessons, the professional driver will help you and will take you with him to see, to make you give you an experience about the road signs and everything. So what I'm gonna do, I'm gonna show you the road from Glace Bay to Sydney, and I will simultaneously explain all the road signals, the things you need to keep in mind. But again, I am not the professional one, right? So I'm just telling you from my experience. So let's start this video now. Alright, so as you can see, we are driving from Glace Bay. तो अब से मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे हम कैसे कर रहे हैं. सबसे पहली बात ये है कि हम राइट हैंड साइड पे गाड़ी चला रहे हैं. तो बीच में आप येलो लाइन देख सकते हो. तो हमें अपने राइट पे रहना है आपने. अब जब हम यहाँ पे आ रहे हैं तो आप देखो यहाँ पे स्टॉप का साइन है, और सिर्फ स्टॉप लिखा है और कुछ नहीं लिखा. इसके नीचे और कुछ नहीं लिखा. इसका मतलब है कि हमने स्टॉप होना है और हमने देखना है कि लेफ्ट से कौन आ रहा है और राइट से कौन आ रहा है. तो हमने अपनी गाड़ी को पूरा स्टॉप करना है. स्टॉप मतलब आपको कंप्लीटली स्टॉप होना है. जब आपका ड्राइविंग टेस्ट होगा ना, तो आप पार्किंग लॉट में भी होगे. तो अब पार्किंग लॉट के अंदर भी ये नहीं कि कहीं भी आप गाड़ी चला लो. देखो वो पार्किंग का प्रॉपर स्पेस है, ये भी पार्किंग का प्रॉपर स्पेस है. तो आपको गाड़ी अपने राइट पे ही रखनी है, आपको लेफ्ट पे गाड़ी नहीं लेके जानी है. स्पीड लिमिट. तो स्पीड लिमिट यहाँ पे जो है मेरे ख्याल से 15 की होती है पार्किंग लॉट के अंदर. और जब भी आप गाड़ी यहाँ पे लगाओगे तो आप ऐसे विद इन द लाइंस लगाओगे, है ना. तो ये भी पार्किंग के अंदर आपका पार्किंग टेस्ट भी होगा, दोबारा से आपको रोड पे लेके चलते हैं. तो यार पार्किंग लॉट में ना आपने ये भी बात का ध्यान रखना है कि अगर कोई पेडिस्ट्रियन कोई क्रॉस कर रहा है, पार्किंग लॉट में आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर कोई पेडिस्ट्रियन क्रॉस कर रहा है तो आपको गाड़ी अपनी रोक देनी है. और पार्किंग लॉट में बिल्कुल भी यहाँ पे तेज नहीं चलानी. They are always first. राइट, द पेडिस्ट्रियंस आर ऑलवेज फर्स्ट. तो इसमें क्या देखो, हमारा यहाँ पे रुकना है. हमने सामने वाला का पहले राइट है. स्टॉप साइन मतलब कि सामने वाला पहले जाएगा, और अब हमने यहाँ से राइट लेना है. और राइट में अगेन हमने यहाँ पे एरो बना है. अभी हम पार्किंग में ही है, तो आप देखो कि यहाँ पे एरो बना हुआ है. तो हमने अपने ही लेन में चलना है. हमने उधर जाके हमने क्रॉस नहीं करना है. तो लेन ड्राइविंग यहाँ पे देखो, वहाँ सामने वो पेडिस्ट्रियन क्रॉस कर रहा है, तो हमने अपनी गाड़ी यहाँ पे रोक लेनी है. तो यहाँ पे बड़ा पेशेंस आपको चाहिए अगर आप ड्राइविंग कर रहे हो. थोड़ा इम्पेशेंट नहीं होना आपको. तो सामने देखो स्कूल बस जा रही है. स्कूल बस का भी अलग मैं आपको बारे में बताता हूँ. मैंने वीडियो बनाई थी. आपने वीडियो बनाई भी ऑलरेडी स्कूल बस के ऊपर. स्कूल बस के लिए कि अगर स्कूल बस रुक गई और उसमें अगर रेड लाइट जल रही है, तो सामने वाला ट्रैफिक भी और हम जिस लेन में हैं वो भी सारा ट्रैफिक
वे ट्रैफिक स्टॉप हो जाएगा। सिमिलरली अगर एम्बुलेंस है, सिमिलरली अगर आपका पुलिस की गाड़ी है, देखो ये लेडी है, ये क्रॉस कर रही है राइट, तो हमें यहाँ पे गाड़ी रोकनी है, रिस्पेक्ट करनी है पेडेस्ट्रियंस की और उसको पहले जाने देना, उसका राइट है। तो अब मैं अगर कहीं और होता, किसी और अपने शायद जहाँ से हमें दिल्ली से शायद होता, तो मैं लेफ्ट से ओवरटेक करके मैं आगे निकल जाता, लेकिन चाहे कितनी भी भीड़ है हमने लाइन नहीं क्रॉस करनी। अब देखो यहाँ पे 2 एरो आ गए, आप रोड पे देखो 2 एरो आ गए, एक आ गया लेफ्ट में, एक चला गया राइट में। तो अगर हमने लेफ्ट जाना है हम इस लेन में आ जाएंगे, राइट जाना है हम उस लेन में चले जाएंगे। तो अब आगे चलते हैं। ट्रैफिक कैसे आ गया? आज ट्रैफिक आ गया। ड्राइविंग स्कूल ये देखिए। अब देखो, अब आप इसको दोगे पैसे, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो आप ऐसे करके ड्राइविंग स्कूल, आप नंबर ले सकते हो इनका, कॉल कर लो इनको और इनसे आप ड्राइविंग क्लासेस भी ले सकते हो। ये कोई अरे बाप रे, ट्रैफिक देखो, इतना ट्रैफिक नहीं देखा हमने कभी ग्लेसबे में। राइट, तो ट्रैफिक आज ज़्यादा ही हो गया यहाँ पे और सारी गाड़ियाँ रुकी हुई हैं। अब जब तक मुझे, उधर भी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो गया, तो अब जब तक मुझे क्लियर नहीं मिलेगा रास्ता, तो मेरा स्टॉप साइन है यहाँ पे, तो मुझे स्टॉप होना है। और अब देखो वहाँ पे अंकल सड़क अगर क्रॉस कर रहे हैं तो सारी गाड़ियाँ रुक गई हैं उसमें, मतलब इधर की। तो भाई वहाँ जाम लग गया था, फिलहाल हमने अपनी टर्न की वेट करी और जब तक सारा रास्ता क्लियर नहीं हुआ हम वहाँ पे आए। अब यहाँ से आप देखो ये पेट्रोल पंप आ गया। अगर आपको यहाँ पे लेफ्ट में जाना है तो आपको यहाँ पे सड़क देखो राइट पे हल्का सा चौड़ी हो गई है और आप यहाँ से लेफ्ट में जा सकते हो। एनीवे, आपको कनाडा में जो बात ध्यान रखनी है वो आपको गाड़ी हमेशा अपने राइट पे रखनी है अगर आपको स्ट्रेट जाना है तो, राइट। अब जैसे जैसे रोड के साइंस आते रहेंगे मैं आपको आगे बताता रहूँगा कि यहाँ पे देखो हमने ये चीज़ ऑब्जर्व करी है, हमने यहाँ पे ये चीज़ ऑब्जर्व करी है। फिलहाल अभी रोड सीधी है, हमने कहीं नहीं मुड़ना। और आप यहाँ पे देख भी सकते हो कि ग्लेसबे ऐसा दिखता है। स्पीड का यहाँ पे बहुत है कंसर्न। यस, येलो में लिखा है एंड ऑफ स्कूल एरिया और यहाँ पे मैक्सिमम स्पीड है 50। अब यहाँ पे लिखा कि मैक्सिमम स्पीड है 50। इसका मतलब है कि हम इंडिया में क्या होता है कि अगर हम 50 पे चला रहे हैं तो हम उससे कम चला सकते हैं, पर यहाँ पे 50 का मतलब है कि आप 50 तक तो चलाओ ही चलाओ और 45 और 50 के बीच में आप चलाना है। तो अभी हमारी स्पीड 45 और 50 के बीच में है, तो वी आर परफेक्ट। उसके अलावा वहाँ पे लिखा था स्कूल एरिया, तो जब भी कभी स्कूल एरिया कहा जाता है तो आपको वहाँ पे स्पीड लिमिट वहाँ पे मेरे ख्याल से 15 या 30 के बीच में, मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा। मैं हमेशा 15 पे चलाता हूँ, जस्ट बी ऑन अ सेफर साइड। अगर आप कभी रोड पे हो और आपको बस लेनी है तो देखो ऐसा वाला आपको साइन देखना पड़ेगा। अगर आप ग्लेसबे एरिया में हो ना तो देखो ये जो साइन है इस पर बस लगी हुई है, तो इसका मतलब आपको यहाँ पे ये आपका बस स्टॉप है, यहाँ पे बस रुकेगी, राइट। और अब यहाँ पे एक साइन देखो, ये वाला साइन है, इसका मतलब पेडेस्ट्रियन, ये वाला साइन, तो पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग है। अगर कोई पेडेस्ट्रियन यहाँ से क्रॉस कर रहा है तो आपको गाड़ी यहाँ पे रोकनी है, राइट। तो वो ये साइन आपको देखना। अब ये वाला आगे जो साइन आ रहा है इसको देखो, आप यहाँ से लेफ्ट किसी को जाना है तो येलो लाइन से आप यहाँ पे लेफ्ट वाली लेन में आ जाओ, एरो भी बना है। स्ट्रेट जाना तो आप इधर अपने राइट पे ही रहो। और अभी यहाँ पे जो बहुत इंटरेस्टिंग, जो मुझे चीज़ बहुत अच्छी लगती है, कनाडा में राइट टर्न फ्री है, मॉन्ट्रियल में नहीं है। आप हैलिफैक्स के अंदर राइट टर्न फ्री है, ग्लेसबे में राइट टर्न फ्री है, किसी जगह पे नहीं है, वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी रास्ते में कैसे आप जान सकते हो। एक ये साइन आ रहा है, इसका मतलब है कि आगे हमारी रोड में बम्प है, मतलब वहाँ पे स्पीड ब्रेकर्स है, पर यहाँ पे स्पीड ब्रेकर यही है जहाँ पे गाड़ी हिल रही है। अब यहाँ पे अगेन देखो स्पीड लिमिट बढ़ गई है, 70 की स्पीड लिमिट हो गई है, तो अब हमें यहाँ पे आके स्पीड बढ़ानी है। अगर आप धीरे चलाओगे और पीछे से पुलिस आ रही है तो आपको रोक सकती है, वो बोलेंगे कि आप धीरे क्यों चला रहे हो, दूसरों का टाइम वेस्ट हो रहा है। तो अगर 70 की स्पीड है तो आपको 65 और 70 के आसपास ही अपनी स्पीड रखनी है। तो अब हमारी स्पीड भी देखो कितनी हो गई है, 65 और 70 के बीच में ही है फिलहाल। आई एम श्योर कि आपको अभी तक 2-4 लेसन्स मिली। अब देखो यहाँ पे स्पीड अगेन कितनी हो गई है, 50। ये बता रहा है कि आगे जाके 50 आएगी। अब ये 50 के ऊपर एरो लिखा हुआ है, तो इसका मतलब आगे जाके 50 आएगी। तो देखो यहाँ से 50 शुरू हो गई है। अभी यहाँ पे आप देखो जो लेफ्ट पे हमारी येलो लाइन है, ये एक ब्रोकन लाइन है, और कभी कभी आप देखोगे कि एकदम सॉलिड लाइन है। अब आगे देखो यहाँ पे सॉलिड लाइन आ गई, इनका भी मतलब बताता हूँ क्या है। तो ये सॉलिड लाइन
टू लेन का मतलब है कि हमने अपने राइट में ही रहना है। अगर किसी को ओवरटेक करना है तो वो हमारे लेफ्ट से होके ओवरटेक करेगा, राइट। हमारे यहाँ पे सिडनी का एयरपोर्ट अब आने वाला है। अगर आप यहाँ पे कभी ग्लेसबे आओ या फिर आप सिडनी में रहते हो तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे आप जब कैपिटल आओगे तो आप यहीं पे ही लैंड करोगे। तो हम आ गए इधर अपना एयरपोर्ट। यहाँ पे अगर आप जाओगे तो लेफ्ट पे आपका एयरपोर्ट है, बट अपने फिलहाल स्ट्रेट जाना है तो हम अपने राइट पे ही गाड़ी रखेंगे। अब देखो इस पे हमने यहाँ पे ये बात ध्यान देनी कि देखो ये लेफ्ट पे आपको अगेन ब्रोकन लाइन दिखाई दे रही है। इसका मतलब है कि हम ओवरटेक कर सकते हैं, बट अगेन हमें स्पीड लिमिट का ध्यान रखना है और मेक श्योर करना है कि हम ओवर स्पीडिंग नहीं करें, क्योंकि यहाँ कनाडा में ओवर स्पीडिंग का बहुत ज़्यादा फाइन है। आपके लाइसेंस पे पॉइंट्स आ जाते हैं जो कि आपका इंश्योरेंस बढ़ा देते हैं और अल्टीमेटली आपको डिस्क्वालीफाई कर देंगे ड्राइविंग से। तो यहाँ कनाडा में तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप सही से गाड़ी चलाओ और ध्यान दो। आगे एक साइन आ रहा है, एक येलो बोर्ड है, मैं चाहूँगा कि आप इसको पढ़ो। यहाँ पे लिखा है कि प्रिपेयर टू स्टॉप व्हेन एम्बर फ्लैशिंग। इसका मतलब है कि अगर येलो बोर्ड पे लाइट फ्लैश हो रही है तो हमें जो आगे रेड लाइट है वो रेड होने वाली है। अगर वो जो पीछे बोर्ड है और उस पर एम्बर अगर फ्लैश हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि अभी जो रेड लाइट गई है उस पर हमें स्टॉप होने के लिए प्रिपेयर होना है कि रेड लाइट कभी भी हो सकती है। तो हमें एक तरह से सिग्नल दे रहा है कि आगे जो तुम जा रहे हो वहाँ पे रेड लाइट हो सकती है। जो हमारी ह्यूमन टेंडेंसी होती है वो होती है जब वो देख लेगा ना तो और एक्सेलरेट कर देते हैं हम, हिट द गैस, बट वो काम नहीं करना है, स्लो डाउन होना है इंस्टेड ऑफ मतलब और फास्ट चलने से अच्छा, क्योंकि पुलिस कहीं पे भी छुपी हो सकती है और वो जैसे ही उनको पता चला यू आर ओवर स्पीडिंग वो अपना सायरन ऑन करके आपके पीछे लगा देंगे। तो ऐसी आगे एक रेड लाइट है और उससे पहले इन्होंने एक और बोर्ड दिया हुआ है सेम चीज़। अगर ये यहाँ पे फ्लैश हो रही होगी लाइट, मैं आपको दिखा, ये देखो अब देखो लाइट फ्लैश हो रही है, इसका मतलब है कि आगे रेड लाइट होने वाली है। तो मैं स्पीड ना करूं और मैं अपनी स्पीड को कंट्रोल में कर लूं। आगे अभी फिलहाल ग्रीन लाइट है लेकिन रेड देखो, वो देखो सामने रेड हो गई। तो वो जो है क्या कहते हैं, अब ये एक तरह से सिग्नल था मुझे, क्योंकि गाड़ियाँ बहुत स्पीड में चलती है, स्लो होती है। और सीपीयू यहाँ पे आ चुका है फिलहाल, ये सीपीयू की रेड लाइट है जो लोग सीपीयू में पढ़ने आ रहे हैं। We are still on ग्लेसबे सिडनी हाईवे। और तो ग्लेसबे ज़्यादा दूर नहीं है यार, मतलब मैंने देखा कि स्टूडेंट्स जो है वो ग्लेसबे के बीच, सिडनी के बीच में है। सीबीयू जो है वो ग्लेसबे और सिडनी के बीच में है। तो अगर आप सीबीयू आ रहे हो तो यू कैन कंसीडर टेकिंग अकोमोडेशन इन ग्लेसबे एज वेल इफ यू गेट अ चीपर वन। अगेन हमने स्ट्रेट जाना है तो हम राइट लेन में ही रहेंगे, हम लेफ्ट लेन में नहीं जाएंगे। ड्राइविंग थिएटर भी दिखाओगे यार, आज मौसम बहुत अच्छा हो गया और अभी यहाँ पे ड्राइविंग आगे थिएटर आ रहे हैं, देखो आगे यहाँ पे ड्राइविंग थिएटर है लेफ्ट हैंड साइड में। अभी CB ड्राइविंग थिएटर विच मीन्स केप ब्रेटन ड्राइविंग थिएटर है। अब अगेन यहाँ पे आपको जो बात ध्यान देनी है, अगेन हमारा राइट टर्न, आगे रेड लाइट आ रही है, राइट टर्न फ्री है और लेफ्ट पे जाना है तो हम लेफ्ट वाली लेन में हो जाएंगे और वहाँ पे आगे जाके हम वेट करेंगे। ये देखो एक लेन डिवाइड हो जाते हैं जैसे जैसे आप देखो भी उस पे जा रहे हो, आगे एक एरो आ गया बेसिकली वो लेफ्ट के लिए, राइट। तो इस बात का हमने ध्यान रखना है यहाँ पे। जब आप ड्राइव कर रहे हो ना तो आपको देखना स्पीड, अगेन 60 की स्पीड आ गई है तो 60 का आपको ध्यान देना ही देना है। अब आगे जाके हमने लेफ्ट होना है, तो लेफ्ट होने के लिए हम क्या है कि मैं अभी से ही ये लेफ्ट लेन में आ जाऊँगा। हालांकि ये लेन ओवरटेकिंग लेन है पर मुझे पता है कि मैंने आगे जाके लेफ्ट होना है, तो मैं अभी से इस लेन में आ गया। और अब जब लेफ्ट होना है तो अगर ग्रीन लाइट हुई, अब ग्रीन लाइट में भी यहाँ पे तीन बातें हैं। पहला कि अगर ग्रीन लाइट सॉलिड ग्रीन है, और दूसरा कि जो ग्रीन लाइट है वो ब्लिंक हो रही है, और तीसरा ग्रीन लाइट है ही नहीं। अब यहाँ पे देखो अगर मुझे लेफ्ट जाना है तो मैं यहाँ से अपनी इस लेन में आ जाऊँगा, लेफ्ट वाली लेन में। अब आगे रेड लाइट है, तो अब रेड लाइट है तो मुझे स्टॉप होना ही होना है। और अगर सॉलिड ग्रीन है, राइट, एरो वाली नहीं है, तो उस केस के अंदर क्या करना है, हमने गाड़ी थोड़ी सी आगे लेनी है और अगर सामने से हमें रास्ता क्लियर दिखता है तो हमें लेफ्ट हो सकता है। अब देखो ब्लिंक कर रही है, ये लेफ्ट में एरो दिखा रहा है, इसका मतलब है कि हमारा राइट है, मतलब हमारा जाने का राइट है। और हमें टर्न लेके एब्सोल्युटली कई बच्चे राइट में ले ले, मैं राइट में उसकी बात कर रहा हूँ कि आपका हक है जाने का। अगेन स्टॉप साइन आ गया और स्टॉप साइन
इसके नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब है कि सिर्फ हमें ही स्टॉप करना है और कोई स्टॉप नहीं करेगा। और जब हमें सब क्लियर दिखेगा तभी हम मोड़ेंगे। अगेन हमारा स्टॉप साइन है, तो हमें दोबारा से गाड़ी स्टॉप करनी है, हमें रुकना है, देखना है कोई भी नहीं आ रहा, तब होना है। अब सामने से आ रही है गाड़ी तो हमें अपने राइट पे ही रहना है, वो लेफ्ट पे जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि कनाडा में ड्राइविंग कौन साइड पे होती है, राइट पे होती है। फिलहाल हम मॉल में आ गए हैं और ये पार्किंग, छोटा सा मॉल, इसका नाम है मेफ्लावर मॉल। ग्लेस बे से अराउंड 15 मिनट दूरी है, राइट। तो फिलहाल हमें लेफ्ट पे जाना है, तो अगेन हम लेफ्ट पे हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पे सॉलिड ग्रीन है, यहाँ पे तो सॉलिड ग्रीन है। We can see कोई नहीं आ रहा है सामने। अब सामने से देखा कोई नहीं आ रहा, तो अब मैं लेफ्ट पे हो गया। अगर यही ब्लिंक कर रहा होता एरो तो वहाँ पे तब तो मेरा हक था जाने का, लेकिन अभी क्या था कि सॉलिड ग्रीन था, तो मैंने गाड़ी थोड़ा सा आगे लिया और देखा कि कोई नहीं आ रहा, तो लेफ्ट पे जा सकते हैं। तो लेफ्ट हम जा सकते हैं सॉलिड ग्रीन पे अगर सामने से कोई नहीं आ रहा। और एट द सेम टाइम अगेन हम पार्किंग में आ गए, कैनेडियन टायर्स, राइट। तो पार्किंग है, जैसे मैंने आपको बताया कि पार्किंग में आपको गाड़ी बहुत धीरे चलानी है, पर डिस्टेंस को तो आपने हमेशा ही जगह देनी है, और गाड़ी आपको एक सही जगह पे आपने पार्क करनी है। पार्क करने की भी 3-4 चीज़ें होती हैं, मैं आपको बताता हूँ। जैसे वहाँ पे आप देखो एक ब्लू साइन दिख रहा है आपको पार्किंग के लिए, मैं आपको भी दिखाता हूँ। देखो सामने तो एक ब्लू साइन दिख रहा है आपको, राइट। इसका मतलब है कि आप गाड़ी वहाँ पे नहीं लगा सकते, क्योंकि वो फिजिकली डिसेबल्ड लोगों के लिए वो पार्किंग है। अब आप बोल सकते हो कि ये पुलिस वाले कैसे पहचानेंगे कि फिजिकली चैलेंजिंग पर्सन है या नहीं है। तो जो भी ऐसे लोग होते हैं, जो बुजुर्ग होते हैं, जो ओल्ड एज होते हैं, या जिनको स्पेशल नीड्स होती है, तो उनको सरकार एक टैग देती है जो कि वो गाड़ी में यहाँ पे टंगाते हैं। तो और एक नंबर प्लेट पे भी और रहता है। एक नंबर प्लेट पे भी रहता है कि भाई ये जो लोग हैं ये नंबर प्लेट पे वो साइन बना होगा, देखो उसकी वाले पे बना होगा वो गाड़ी पे, अगर हम उतर के दिखाएं तो। ठीक है। तो अब उसमें क्या कि जब भी कोई आएगा सामने से वो देख लेगा कि यहाँ पे टैग लगा हुआ है, इसका मतलब है कि वो वहाँ पे गाड़ी पार्क कर सकता है। तो अगर आपके पास वो टैग है तो आप वहाँ पार्क कर सकते हो, अदरवाइज़ अगर आपने पार्क कर दी तो आपको फिर वो फ़ाइन हो जाएगा। फ़िलहाल यहाँ पे बहुत प्यारा सा यहाँ पे डॉग भी है, जो कि यहाँ पे लोग साथ में लेके आते हैं, कभी भी शॉपिंग के लिए जाते हैं या कुछ भी। तो अब जैसे अगर हमने यहाँ से लेफ़्ट जाना है और आगे रेड लाइट है, तो अब हमें यहाँ पे रुकना पड़ेगा, क्योंकि हम कनाडा में लेफ़्ट फ्री नहीं है, इंडिया में लेफ़्ट फ्री है। मेक श्योर आप इंडिकेटर दो यहाँ पे, राइट। तो अब देखो सामने रेड लाइट है, तो वी नीड टू वेट। और जब भी आप गाड़ी में हो तो आपको सामने वाली गाड़ी से इतना डिस्टेंस बना के चलना है कि आपको उसके जो टायर्स हैं वो आपको यहाँ से बैठे बैठे नजर आए। इतना डिस्टेंस आपको मिनिमम बना के चलना है। अभी यहाँ पे आपको जो ये ट्रेन का ट्रैक दिख रहा है साथ में, अभी फिलहाल सिडनी के अंदर ये ट्रैक बंद हो गया है। अभी सिडनी में कोई ट्रेन नहीं चलती, कोविड के बाद से ट्रेन्स बंद कर दी हैं। लेकिन अभी मैंने गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा अभी न्यूज़पेपर में रिसेंटली कि दे माइट स्टार्ट अगेन द ट्रेन्स बिटवीन सिडनी एंड हैलिफैक्स इन नेक्स्ट 2 years। तो 2 साल में जो ट्रेन की पटरी आपको यहाँ पे दिख रही है, तो आई एम श्योर आपको यहाँ पे ट्रेन्स भी दिखेंगी। अभी आज के डेट में ट्रेन नहीं है। अब यहाँ पे सिडनी में 3-4 जगह ऐसी है जहाँ पे राइट टर्न फ्री नहीं है, जिसमें से मैं आपको दिखाऊंगा। अभी यहाँ पे आगे जाके जो रेड लाइट है वहाँ पे हमने राइट होना है, तो वहाँ पे राइट टर्न फ्री नहीं है। अगर राइट लेना है हमने तो उसके लिए अगेन ग्रीन सिग्नल का होना ज़रूरी है। बहुत सारी रोड्स कनाडा में ऐसी हैं जहाँ पे सिर्फ सिंगल 1 वे लेन है, तो उसका एरो अलग से आता है जहाँ पे 1 वे लेना है। तो जब भी आप एग्ज़ाम दोगे तो आपको सिग्नल्स पे हमेशा से ध्यान रखना है कि कौन कौन से सिग्नल कौन कौन से साइन हमारे रोड पर है। अब यहाँ पे देखो ये जो रेड लाइट है, इस पे एक तो बता रहे हैं कि यहाँ पे ट्रेन का ट्रैक है, ये वाला बोर्ड बता रहा है ट्रेन का ट्रैक है, बट यहाँ पे देखो ये बता रहा है कि राइट टर्न फ्री नहीं है। जो राइट टर्न है उसके ऊपर ये क्या बता रहा है, एरो दिखा रहा है, तो राइट टर्न इज़ नॉट फ्री। अब मेरे को सामने रेड लाइट है और अब वो रेड लाइट के अंदर मेरे को वेट करना है कि जब वो ग्रीन होगी तो ही मैं राइट ले सकता हूँ। ऐसा मॉन्ट्रियल में भी ऐसा ही है, मॉन्ट्रियल में आप राइट नहीं ले सकते एज़ पर माई नॉलेज। तो अभी आपको दिखाते हैं, यहाँ पे ग्रीन होगा तो फिर हमने यहाँ पे राइट लेंगे। सामने वाली गाड़ी ने भी राइट ही जाना, रुकी हुई है।
यूजुअली। अब देखो ये राइट का आ गया, स्ट्रेट आ गया, और उधर वाला भी, लेफ्ट वाला भी हमारा सॉलिड है। इसका मतलब लेफ्ट वाले लेफ्ट हो सकते हैं, बट सामने से कोई नहीं आना चाहिए। अब अगेन आगे स्टॉप का साइन है, स्टॉप। तो बेसिकली यहाँ पे जो जो गाड़ी आएंगी वो एक एक करके स्टॉप होंगी और वो एक एक करके आगे जाएंगे। तो आई एम श्योर ये जो मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ, अगर आप ये देखोगे तो आपको आगे जब आप कनाडा आओगे तो आपको एटलीस्ट एक थ्योरी लेसन मिल गया है कि आप यहाँ पे आओगे तो आपको ड्राइविंग अगर आपने करनी है और आप ड्राइविंग क्लासेस लेने जा रहे हो तो एटलीस्ट आपको एक थ्योरी क्लियर है। अब बस सिर्फ आपको प्रैक्टिकल करना है आगे। अगर और भी कुछ आपको जानना है या फिर अगर मैंने कुछ ऐसा मिस कर दिया है तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछो। आई विल बी हैप्पी टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। 4-वे स्टॉप है। और अब यहाँ पे देखो ये 4-वे स्टॉप है, यहाँ पे लिखा है 4-वे, स्टॉप के नीचे लिखा है 4-वे। इसका मतलब है कि चारों डायरेक्शंस में जो जो गाड़ियाँ आएंगी वो रुकेंगी और वो एक एक करके जो पहले आएगा वो पहले जाएगा और वो एक एक करके फिर अपने अपने जाएंगे। तो मेक श्योर आप स्टॉप साइंस को फॉलो करो, पेडेस्ट्रियंस को देखो, रोड साइंस को देखो। और ये वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। कोई भी क्वेश्चन है तो या तो निधि से पूछो या फिर आप मुझसे पूछो। और स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेटेड वीडियोस। थैंक यू सो मच।